Good morning, children. Today is the last part of electrochemistry. We have seen that dilution was there. The conductivity decreases with decrease in concentration. Decrease in concentration कब होगा? जब dilute solution होता जाएगा. So conductivity decreases with decrease in concentration for both weak and strong electrolytes. So what are the example of strong electrolytes? What are strong electrolytes actually? Which ionize completely or near about completely in their solution are known as strong electrolytes. Some examples I have written, like some strong acids, some strong bases, some salts, and so many more examples could be there which completely ionize. And what are the weak electrolytes? Like weak acids, HAF, CH3COH, H2CO3, H3PO4, HNO2, nitrous acid, etc. On dilution, what happens? Number of ions per unit volume decreases. जितना ज़्यादा dilute करोगे, ions कम होते जाएंगे. So the conductivity of a solution at given concentration is the conductance of 1 unit volume of solution kept between two platinum electrodes with unit area of cross section and a distance of unit length. यानी length भी unit ले लो, unit यानी 1 और area A is equal to 1 ले लो, right? Then formula can be written as G is equal to K A upon L. अब area भी हमने unity ले ली और L भी 1 ले लिया, तो K G is equal to K. Understood? Then comes the new term that is known as molar. If conductivity will be defined, you have to define like that. Then comes molar conductivity. Molar conductivity of a solution at a given concentration is the conductance of volume V of the solution. कोई भी volume V है, containing 1 mole of electrolyte. Molar conductivity नाम से ही पता है, 1 mole of electrolyte kept between two electrodes with area of cross section A and distance of unit length. Length कितना ले लिया? फिर 1, right? तो it is denoted by molar conductivity. हमने पहले भी पढ़ा है, lambda m is equal to K A upon L. Okay, so it can be given as L1 ले लिया और A is the volume. Okay, तो lambda m is equal to K और area को volume में कर दिया, so V, so is equal to KV. L तो हमने 1 ले लिया है. मोलर कंडक्टिविटी ये उल्टा है कंडक्टिविटी का, ध्यान रखना. मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन बिकॉज टोटल वॉल्यूम बी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 mole of electrolyte also increases. So it is just opposite to conductivity. One question is there in the exercise, you can see. When concentration approaches 0. अब बेटा ध्यान में रखो कि concentration 0 कब होगा? जब हम उसको dilute करते जाएंगे तो कुछ एक situation सोचो ऐसी आए कि concentration 0 हो गया. That is also known as infinite dilution. किसी चीज को dilute करते जाओ तो concentration approaches 0 and this is known as, then the molar conductivity is known as limiting molar conductivity and it is denoted by lambda 0m, या अपनी टेक्स्ट बुक में E0m ऐसा भी लिख सकते हैं. ठीक है, कोई भी करेक्ट है. द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए lambda m, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी, इज गिवन बाय lambda 0m minus AC raised to half, where C is the concentration, you know. Then comes Coriolis law of independent migration of ions. आयन कहाँ से आए? जो अपने पास सॉल्यूशन है उसमें आयंस हैं, इलेक्ट्रोलाइट से बने हुए. सो द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट lambda 0m कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, एकदम इजी है, सम ऑफ इंडिविजुअल contribution of anion and cation. So you can see here I have written lambda 0m limiting molar conductivity of NaCl is given by, again this is lambda ही इसको प्रोनाउंस करते हैं बट ये आयनिक लिमिटिंग आयनिक मोलर कंडक्टिविटी है ना. सो lambda 0 Na प्लस एंड lambda 0 Cl माइनस. फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एट एनी कॉन्सेंट्रेशन C, इफ अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. डिसोसिएशन यू अंडरस्टैंड ना, पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन सेपरेट हो जाते हैं, दैट इज डिसोसिएशन. तो इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज अल्फा,
तो अल्फा का फॉर्मूला देंगे, ये हम न्यूमेरिकल में यूज करेंगे, ध्यान रखना, लैम्डा m अपॉन लैम्डा 0 m. ओके, सो मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी. नीचे वाला लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ऊपर वाला मोलर कंडक्टिविटी. बट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka इज गिवन बाय C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा. अब अल्फा की वैल्यू तुम ये पुट करोगे तो ये फॉर्मूला बनेगा. ओके, और दिस यू हैव टू रिमेंबर फॉर द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स. वन क्वेश्चन आई एम सॉल्विंग हियर, दैट इज इन टेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखना. द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.025 मोल पर लीटर मिथेनोइक एसिड. सो 0.025 मोल पर लीटर क्या हो गया बेटा, कॉन्सेंट्रेशन. एंड मोलर कंडक्टिविटी यानी लैम्डा m इज 46.1 Siemens cm square mole inverse. And calculate the degree of dissociation and simultaneously dissociation constant Ka. Given that lambda 0 H plus ionic limiting molar conductivity of H plus is 349.6 and HCOO minus is 54.6. तो मुझे पता है कि लैम्डा 0 m इज कैलकुलेटेड बाय दोनों आयंस के लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को ऐड कर दो तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी टोटल पता चल जाएगा. सो इट इज सिंपल, वी हैव एडेड दीज टू एंड वी हैव फाउंड द वैल्यू 404.2. यूनिट विल बी Siemens cm square mole inverse. कैन यू सी चिल्ड्रन? दिस वी हैव सिंपली एडेड. देन अल्फा का फॉर्मूला क्या बताया था, मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी. Molar conductivity is given in the question. You can see it is given 46.1. So 46.1 divided by जो अभी हमने calculate किया, that is 404.2. So it gave the value 0.11405. Understood? Alpha we got. So Ka कैसे निकालोगे, वही फॉर्मूला C alpha. फॉर्मूला तो याद रखना है बेटा, C alpha square upon 1 minus alpha is equal to C minus concentration, it is given, फर्स्ट लाइन में ही दिया हुआ था, into अल्फा जो भी निकाला उसका स्क्वायर divided by 1 minus alpha. When you will calculate, it will give the value 0.000367. So it can be written as 3.6 into 10 raised to power minus 4 मोल पर लीटर. ये आपको इस तरह से ही आंसर लिखने हैं. अंडरस्टूड? फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के बाद पॉइंट डाल के. गॉट इट? गॉट द क्वेश्चन? Then we will deal with Faraday's law of electrolysis. In 1833-34, Faraday gave certain laws of electrolysis. First law is the amount of chemical reaction which occurs at any electrode, cathode and anode, during electrolysis by a current is proportional to the quantity of electricity passed through the electrolyte. As such, we have to learn the definition. Then second one is the definition नहीं law को, ठीक है ना? The amount of different substances liberated by same quantity of electricity passing through the electrolytic solution are proportional, let me write here, are proportional to their chemical equivalent weights, right? एक फॉर्मूला याद रखेंगे इसमें, Q is equal to IT, where Q is charge, that is expressed in coulomb, we know. I means current, that is expressed in ampere. एंड T इज टाइम, टाइम मीन्स सेकेंड. बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखना. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज फैराडेज लॉ से क्या निकल के आई कि Ag प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन विल गिव अस Ag सॉलिड. ये क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन हो रहा है. ध्यान में आया? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन. सो हियर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नीडेड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ सिल्वर आयन. अंडरस्टूड? 1 mole of electron is needed for the reduction of 1 mole of silver ion. So 1 mole of solid Ag is obtained. 1 Faraday की वैल्यू होती है 96,487 कूलम. तुम पूछोगे टीचर ये वैल्यू कहाँ से आई, तो वी विल आंसर दैट 1 इलेक्ट्रॉन की चार्ज क्या होती है बेटा, 1.6 इंटू 10 raised to power minus 19 कूलम. और 1 मोल इलेक्ट्रॉन यानी मोल की n से वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो. इन दोनों को जब तुम मल्टीप्लाई करोगे दिस विल गिव 96,487 कूलम. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय 96,487 कूलम एंड इट इज ऑल्सो डिनोटेड एज 1 Faraday, right? Now on the basis of this only
I am going to solve a important question and interesting also. Exercise में से क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 3.15. A solution of nickel nitrate is electrolyzed between platinum electrodes by using a current of 5 ampere for 20 minutes. बेटा डेटा क्या क्या दिया हुआ देख लीजिए आप. I is equal to 5 ampere, T is equal to 20 minutes. मिनट्स को सेकेंड में कन्वर्ट करना नहीं भूलना है, जो भी है उसको हमें सेकेंड में कन्वर्ट करना. सो Q is equal to IT we will use. I is 5 ampere, time is 20 minutes, 20 minutes converted into second. So it has given us the value of 6000 coulomb. What? So निकल का रिएक्शन कैसा होता है रिडक्शन, जरा ध्यान में रखो. निकल 2++2 इलेक्ट्रॉन. ऐसे भी तुमको कैसे मालूम चलेगा पता है, अगर भूल भी जाओ तो NiNO3(2). निकल की वैलेंसी 2, NO3 की -1. डू यू रिमेम्बर? सो निकल 2++2 इलेक्ट्रॉन विल गिव अस निकल सॉलिड. अब 2 इलेक्ट्रॉन देखते ही मुझे समझ में आ गया 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एंड सो इट इज 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सो 2 फैराडे, राइट. सो 2 moles of electrons needed. So 2 Faraday is there. Therefore Faraday की वैल्यू क्या होती है, अभी हमने पढ़ा 1 Faraday की वैल्यू 96,487 कूलम. तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. नाउ द क्वेश्चन अकर्स कि क्यों मल्टीप्लाई किया, बिकॉज अपना यहाँ पे कूलम में कन्वर्ट किया है, तो या तो यहाँ फैराडे कन्वर्ट कर लो या इस फैराडे को कूलम बना लो. सो 2 into 96,487 कूलम. यू अंडरस्टूड बेटा, यहाँ 2 फैराडे है ये. गिव्स 58.7 ग्राम निकल. ये कैसे पता चलेगा, जो अननोन एलिमेंट्स है हमारे लिए, जिसका हमें नहीं याद है, वो बुक क्वेश्चन में दिया रहेगा. सो निकल का मास कितना होता है, मोलर मास 58.7 ग्राम पर मोल. तो 1 मोल निकल मिल रहा है ना, ये 1 मोल निकल है. सो 2 into 96,487 कूलम गिव्स 1 mole of nickel, that is 58.7 gram nickel. So 6000 coulomb, how much? 6000 into 58.7 divided by this 2 into 96,487 will give us 1.825 gram nickel. Understood the question? Because we had to find out how much nickel is deposited. You all are advised to go through all the numerical problems of the exercise and solve by yourself. If any problem is there, you give me the message, I will solve your problem. Now we will come for products of electrolysis. During electrolysis of a aqueous NaCl solution, NaCl का जो aqueous solution है, products obtained are NaOH, Cl2 and H2. Because Na plus ion, Cl minus ion, OH minus ion, H plus ions are there. अब तुम पूछोगे टीचर ये कहाँ से आया OH minus ion and H plus ion? Because aqueous solution means it is dissolved in water. So water is again dissociated in H plus and OH minus. So at cathode what will be the reaction? Cathode में gain of electron होता है मालूम है. So Na plus plus 1 electron is equal to Na solid. इसका E0 cell है -2.71 volt. Can you see? एंड दूसरा रिएक्शन भी हो रहा है कैथोड पे, दैट इज H प्लस आयन टेक्स 1 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म्स हाफ H2. एंड इसका E0 सेल हाइड्रोजन का तुम्हें पता ही है 0 होता है. बट द हाई E0 सेल विल बी प्रेफर्ड एट कैथोड. कैथोड पे क्या होता है, हाई E0 सेल प्रेफर्ड होता है. तो इन दोनों में कौन सा हाई है, हाइड्रोजन वाला. सो एट कैथोड द रिएक्शन प्रेफर्ड विल बी, या रिएक्शन एक्चुअली अकर्स विल बी H plus E minus will give half H2. कोई पूछे तो क्या बताओगे, इन दोनों का E0 सेल देखा हमने, जिसका हायर है दैट रिएक्शन विल अकर एट कैथोड. अंडरस्टूड. देन H प्लस आयन कहाँ से आया था तुमको पता ही है, H2O लिक्विड डिसोसिएटेड इनटू H प्लस एंड OH माइनस आयन, अभी मैंने बताया तुम्हें. सो नेट रिएक्शन एट कैथोड इज, जो H2O था प्लस 1 इलेक्ट्रॉन विल गिव हाफ H2 प्लस OH माइनस आयन. अंडरस्टूड बेटा. एट एनोड, अगेन एनोड पे भी रिएक्शन हो रहा है. सो Cl माइनस आयन विल गिव हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन. सो E0 सेल इज 1.36 वोल्ट. E0 cell is 1.36 volt and 2H2O liquid will give us O2, दिख रहा है O2 plus 4H plus ion, डिसोसिएट होगा तो 4H plus ion कहाँ से है, 2 to the 4H plus ion
plus 4 electron. E0 cell is equal to 1.23 volt. So एनोड पे क्या करते हैं, लोअर E0 सेल प्रेफर करते हैं. तो इन दोनों में लोअर कौन है, ये वाला, ओके, H2O वाला. बट व्हाट हैपेंस हियर चिल्ड्रन, बट ड्यू टू ओवर पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन फर्स्ट रिएक्शन इज प्रेफर्ड. So the reaction given is NaCl aqueous in presence of H2O will give us Na plus Cl minus ion. At cathode the reaction is H2O will be broken into H plus and OH minus ion. Anode पे Cl minus will be giving us half Cl2 plus 1 electron. So net reaction दोनों को add कर दो, NaCl plus H2O, Cl तो cancel हो रहा है, is equal to Na plus OH minus ion plus half H2 plus half Cl2. Understood? So this will be our net reaction of electrolysis of NaCl. Children, now we will discuss about batteries. It is given in the book. Important points of batteries. कैसे लिखना है, जैसे मैंने बताया ऐसे ही शॉर्ट नोट आएंगे क्वेश्चन में. So MCQ भी इसमें से आ सकता है. Important points I have written here. प्राइमरी बैटरी एक बार वो जब यूज हो जाते हैं उसके बाद थोड़े पीरियड के बाद वो खत्म हो जाते हैं. लाइक वी हैव सीन दिस ड्राई सेल्स यूज्ड इन क्लॉक, ट्रांजिस्टर एटसेट्रा. सो वंस द केमिकल रिएक्शन इज ओवर, ऑल द केमिकल्स आर ओवर नाउ, सो द बैटरीज कांट बी रीयूज्ड. अंडरस्टूड? हियर क्या होता है देखना ध्यान से. फर्स्ट सेल इज ड्राई सेल, इट इज ऑल्सो नोन एज लेक्लांशियर सेल. जिंक कंटेनर इज देयर विच एक्ट्स एज एनोड. कार्बन का ग्रेफाइट का रॉड है कैथोड. सो कैथोड हो गया, एनोड हो गया. And this carbon rod which is cathode is surrounded by powdered MnO2 manganese dioxide and carbon. ये याद रखना बेटा, ये सब MCQ में आते हैं ये सब क्वेश्चन, ठीक है. A moist paste of ammonium chloride and zinc chloride is filled between the electrodes. दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में फिल कर दी. ये सब क्वेश्चन MCQ के लिए रन रखने हैं अपने को. एनोड पे रिएक्शन विल बी जिंक विल बी गिवन 2 इलेक्ट्रॉन्स. कैथोड पे MnO2 plus NH4 ion plus E1 electron it will take. It will form manganese oxide hydroxide MnOOH. OH को ब्रैकेट में लिखेंगे प्लस अमोनिया. ये अमोनिया बैठा नहीं रहता है. दिस अमोनिया प्रोड्यूस्ड फॉर्म्स ए कॉम्प्लेक्स आयन विद जिंक 2+ ion and to give Zn NH3 2+ ion. This cell has a potential of 1.5 volt. इतना लिख दोगे शॉर्ट नोट काफी है. Then comes mercury cell. This is suitable for low current devices like hearing aids, watches, etc. इसमें क्या है, जिंक Hg एमलगम. एमलगम मतलब भी वो समझ लो Hg के साथ. सो जिंक मर्क्यूरी एमलगम एनोड पे, ये एनोड बना है इसका, ठीक है. एंड पेस्ट ऑफ कार्बन एंड HgO कैथोड बनाया. इलेक्ट्रोलाइट क्या है, पेस्ट ऑफ KOH एंड ZnO. इलेक्ट्रोलाइट भी बन गए. So, what is the reaction at anode? Zinc mercury amalgam plus 2 OH minus will give ZnO solid plus H2O plus 2 electron. Reactions once you understand, it is very easy to learn. At cathode, HgO plus H2O plus 2 electron will give Hg plus 2 OH minus. Overall reaction दोनों को ऐड कर दो, ठीक है. इलेक्ट्रॉन कैंसल कर दो, बाकी ऐड कर दो. Then comes secondary batteries. Secondary batteries और primary batteries में अंतर क्या, मेन डिफरेंस क्या है. secondary batteries are rechargeable, ठीक है. उसमें क्या था, once the chemicals are over, the batteries can't be used again. A secondary cell can be recharged by passing current in it in opposite direction. So most important ये पूछ सकता है एग्जाम में 2 मार्क में. lead storage cell. So inverters and automobiles में यूज होता है. This is used in inverters and automobiles. Lead anode and a grid of lead packed with PbO2 are used as cathode. एक एनोड, lead का एनोड हो गया और Pb packed with PbO2 will make the cathode. एनोड कैथोड बन गया. What is electrolyte? तुमने शायद सुना भी होगा, अपने घर में इन्वर्टर होता है, उसमें हम एसिड डालते हैं. कौन सा एसिड डालते हैं, 38% सोल्यूशन ऑफ H2SO4, यानी 100 ml में 38 ml. I hope my children understand. So at anode the reaction is Pb plus SO4 2 minus, जो अपने को एसिड से मिला, gives PbSO4 plus 2 electron. At cathode PbO2
पहले से हमने PbO2 का कैथोड बनाया प्लस SO4 2 माइनस प्लस 4H प्लस 4H प्लस कहां से H2SO4 से प्लस 2 इलेक्ट्रॉन विल गिव अस PbSO4 प्लस 2H2O. दोनों को ऐड कर दो, देयर विल बी द नेट रिएक्शन और ओवरऑल रिएक्शन Pb सॉलिड प्लस PbO2 प्लस 2H2SO4, ये 4H और 2SO4 मिलकर बन गया 2H2SO4 विल गिव अस PbSO4, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसल्ड प्लस 2H2O. ठीक है, राइट साइड वाला 2 इलेक्ट्रॉन और लेफ्ट साइड वाले जैसे अपन ने वो चैप्टर में पढ़ा था रेडॉक्स रिएक्शन में, राइट. सो ऑन चार्जिंग द रिएक्शन इज रिवर्स्ड एंड द बैटरी इज रिचार्ज्ड. देन अनदर टाइप ऑफ सेकेंडरी सेल वी हैव टू रीड, दैट इज निकल कैडमियम सेल. इसमें कुछ ज्यादा पढ़ना नहीं है हमें, सिर्फ एक रिएक्शन का रिएक्शन है, आएगा भी नहीं एग्जाम में. सिर्फ ये ध्यान रखना है कि लॉन्गर लाइफ देन लेड स्टोरेज सेल, बट ज्यादा एक्सपेंसिव होने की वजह से इसका प्रोडक्शन नहीं होता है. ये रिएक्शन सिर्फ दिमाग में रखना, ठीक है. देन कम्स फ्यूल सेल्स. व्हाट आर फ्यूल सेल्स? दे आर यूज्ड इन स्पेस प्रोग्राम्स. सो गैल्वेनिक सेल्स, पहले तो डेफिनेशन लर्न कर लेते हैं. गैल्वेनिक सेल्स दैट आर डिजाइन्ड टू कन्वर्ट द एनर्जी ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल्स लाइक हाइड्रोजन. अभी तुमने पढ़ा होगा, हाइड्रोजन इज यूज्ड एज फ्यूल in space programs. CH4, CH3OH, methanol, etc. directly to electrical energy are called fuel cells. In one of the fuel cells, reaction of hydrogen with oxygen to form water. जो स्पेस प्रोग्राम में साइंटिस्ट लोग जाते हैं, एस्ट्रोनॉट्स लोग, उनको वाटर उससे मिल जाता है, प्लस एनर्जी तो मिल ही जाती है. ड्रिंकिंग वाटर इज ऑल्सो सप्लाइड. In the cell, इस टाइप के सेल में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर बबल्ड थ्रू द पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड्स इनटू कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस NaOH solution. Catalysts like finely divided metals like platinum or palladium are incorporated into the electrodes for pacifying the reaction. The reaction at cathode is O2 plus H2O plus 4 electron will give us 4OH minus ion. Okay, reduction हो गया. Then anode पे H2 plus O2 will give us H2O. Oxidation हो गया, O2 combine हो गया तो oxidation हो गया. This type of fuel cells are pollution free and very effective. They produce electricity with an efficiency of 70% in comparison to thermal power plants, जहां efficiency 40% है. बेटा जब ये 30-40% या 70% बोले तो अबाउट समझ में लेना, एकदम एग्जैक्ट फिगर नहीं, 70% नहीं, अबाउट 70% इन कंपैरिजन टू थर्मल पावर प्लांट्स हुज एफिशिएंसी इज अबाउट 40%. सो इट इज वेरी इफेक्टिव. हाउ द क्वेश्चन कैन कम? राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फ्यूल सेल्स और राइट ए शॉर्ट नोट ऑन लेड स्टोरेज सेल एटसेट्रा. सो the points which I have written, if you will learn those points by understanding, that will be enough. Now last topic is corrosion. The rusting of iron, जो अपने आसपास तुमने देखोगे स्पेशली बारिश के सीजन में, जो हमारे घर में कॉपर का सब्सटेंस है या ब्रॉन्ज का, तो ग्रीन ग्रीन हो जाता है, थोड़ा सा गंदा सा टार्निश सा हो जाता है. सिल्वर ऑर्नामेंट्स जो हम पहनते हैं, दैट ऑल्सो गेट्स ब्लैक इन टाइप, कुछ गंदा सा दिखता है थोड़े समय के बाद, दैट इज नॉट शाइनिंग. एंड आयरन की पिंस वगैरह तो हम रोज ही देखते हैं कि वो रेड रेड जैसा उसमें लग जाता है, पिंस हो, की हो, एनीथिंग हो. So that is actually corrosion, that is actually rusting. The rusting of iron, tarnishing of silver, green coating on copper, bronze, etc. This is known as corrosion. It causes enormous damage to the buildings. क्यों? बिल्डिंग में क्या है corrosion का रोल? Because you know, जो आयरन के ही इसमें सब लगे होते हैं, रॉड्स और ये बेसिक मटेरियल, ब्रिजेस, शिप्स एंड ऑल ऑब्जेक्ट्स मेड अप ऑफ मेटल, स्पेशली आयरन. तो इसको बिल्डिंग्स तो अभी बहुत उसको सेफ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कोरोजन फ्री बनाना पड़ेगा. इन कोरोजन अ मेटल इज ऑक्सीडाइज बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स. कोरोजन ऑफ आयरन अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड एयर. तुम पूछोगे टीचर वाटर कहां से आया? तो वाटर इज इन मॉइस्चर, मॉइस्चर इज सराउंडिंग अस, राइट. सो एनोड पे रिएक्शन, ये रिएक्शन हमें लर्न करने बेटा, क्वेश्चन आएगा हाउ राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कोरोजन. सो रिएक्शंस वी हैव टू लर्न. एट एनोड Fe will lose 2 Fe will lose 4 electrons.
One Fe will lose 2 electrons, so 2 Fe will lose 4 electrons. E0 Fe is minus 0.44 volt. Okay. The electrons released, ये जो 4 electron release हुए, ये go to the another spot of metal, है ना, उसी metal में iron के दूसरी जगह पे चले गए, and in presence of H plus reduce oxygen. ठीक है. अब पूछोगे ये H plus कहाँ से है, तो H plus comes from, पॉसिबिलिटी है कि फ्रॉम H2CO3 कार्बोनिक एसिड विच इज फॉर्म ड्यू टू द डिसोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज फ्रॉम एयर एंड वाटर, उससे H प्लस आयन निकल गया. दिस स्पॉट बिहेव्स लाइक कैथोड, जहां वो इलेक्ट्रॉन चले गए और रिड्यूस किया ऑक्सीजन को, उसको कैथोड बना. सो एट कैथोड द रिएक्शन इज, ऑक्सीजन है ही, 4 इलेक्ट्रॉन वहां से आया था, प्लस 4H प्लस विल गिव अस H प्लस कहां से है, अभी बताया H2CO3. H2CO3 कहां से है, जो सराउंडिंग है CO2, H2O में डिजोल्व हो गया. सो H प्लस आयन कम्स फ्रॉम H2CO3. इट गिव्स 2H2O लिक्विड. E0H प्लस O2H2O इज 1.23 वोल्ट. ओवरऑल रिएक्शन लिख दो, एनोड प्लस कैथोड. सो एनोड इज 2Fe, कैन यू सी चिल्ड्रन, प्लस O2 प्लस 4H प्लस इज इक्वल टू 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर दो, 2Fe2 प्लस H2H2O. इस टोटल E0 सेल यानी E0 कैथोड माइनस E0 एनोड. सो व्हेन यू विल डू दिस माइनस 0.44, दोनों को ऐड करना पड़ेगा. सो इट विल बी E0 सेल. डू यू रिमेम्बर, पहला लाइन ही हमने इस लेसन में यही पढ़ा था, E0 सेल इज इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड. E0 राइट माइनस E0 लेफ्ट. Then prevention of corrosion. There are different techniques. Some of them I have mentioned here. Covering the surface with paint, chemical like bisphenol, etc. Oil से भी कवर करते हैं तो भी प्रिवेंशन होता है. ठीक है. किसी भी चीज को तुम देखोगे, आयरन का गेट है, रॉड है, तो उसको लोग कलर कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, तो उसको प्रोटेक्टेड हो जाता है. Then comes cover the surface by another inert matter. Like if you have read Sn, zinc, etc. are used for this purpose. You must have read in previous classes about galvanization of iron with zinc. What it is actually बेटा, आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग कर देते हैं, क्योंकि जिंक इनर्ट मटेरियल है तो आयरन को प्रोटेक्ट करता है. ठीक है. अनदर इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड टू प्रोवाइड अ सेक्रीफाइशियल इलेक्ट्रोड ऑफ अनदर मेटल. ठीक है, लाइक जिंक, Mg एटसेट्रा. तो क्या होता है, उनका खुद का कोरोजन हो जाता है, बट दे सेव द ऑब्जेक्ट, उसके ऊपर वो कोटिंग आ जाती है. सो इन दिस वे कोरोजन इज प्रिवेंटेड. हाउ द क्वेश्चन विल कम, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कोरोजन. इतना लिख दोगे दैट विल बी इनफ. ओके, डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स हमें लिखना है, पर इफ इट कम्स ऑफ 3 मार्क्स दिस इज इनफ. अंडरस्टूड चिल्ड्रन? If any problem is there in the textbook questions, you ask me, I will solve your problem. Okay, thank you.